Good morning, students. Today we start with chapter 2 Political Science Federalism. Now, what is the meaning of federalism? Simply, federalism means division of power. Power का division होना is federalism. It is opposite of unitary. These are the type of government: federal government, unitary government. Basically, unitary government is a type of government in which power is concentrated in single hand, या यूँ कह सकते हैं कि लाइक डिक्टेटरशिप के एक ही हाथ में पावर होती है, जबकि फेडरलिज्म के अंदर पावर का डिवीजन होता है. डिवीजन इन विच वे, like one government is for entire nation, it is called union, or central government which looks subject of common national interest, जो ऐसे सब्जेक्ट देखती है जो पूरे देश के इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया को लेकर के नहीं. सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एट स्टेट या प्रोविंस लेवल, नोन एज स्टेट गवर्नमेंट, विच लुक्स आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस स्टेट से रिलेटेड डे टू डे मैटर होते हैं उनको देखती है. सो फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर. फेडरलिज्म, अपोजिट ऑफ फेडरलिज्म इज यूनिटरी. In division of power, power is divided between the types of government, like for entire nation a government, that is union or central government, and government is state or province level, that is state government. In our country there is a third tier of government also, which is known as the panchayati raj system or local government. These are called the tiers of government. First tier of government, this is second tier of government, and third one is द लोकल गवर्नमेंट, जिसको कि हम पंचायती सिस्टम भी कहते हैं. बट रिमेंबर दैट बोथ दीज लेवल एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. बोथ दीज लेवल मीन्स यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल, यानी ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है. फेडरलिज्म के अंदर इनकी पावर अलग अलग होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती हैं अपने आप में. इनके पास जो भी वर्क है उससे रिलेटेड इनकी पावर्स होती हैं. So, federation is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has two levels of government. One is the government for entire country, that is usually responsible for few subjects of common national interest, and the other are government at the level of province or state that looks after day-to-day administration. And both these levels of government enjoy their powers independent of each other. In this sense, federations are contrasted with unitary government. As I said earlier कि federation और unitary दोनों ही different forms of government है, एक दूसरे की opposite forms of government है. If the question comes in your board कि what is the difference between unitary and federation form of government, then you have to write under the unitary system either there is one level of government, या तो खाली एक ही level of government होता है, और the sub units are subordinate to the central government, या जितनी भी sub units होती हैं वो central government की subordinate होती है. मीन्स कि central government कोई भी order अगर पास करती है province और local government को तो उसको वो follow करने होते हैं. लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर the central government cannot order the state government to do समथिंग. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती हैं. एंड बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. सो दिस क्वेश्चन में कम्स इन योर बोर्ड. राइट इन योर textbook difference between unitary and federal form of government on page number 15, and on page number 14 you have definition of federal government की. what is federal government अगर ये आता है तो this is the definition of federal government. Now let us look at some of the key features of federalism. this question comes as it is in your board. 5 marks का question आता है कि explain the फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के. फेडरलिज्म के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज देयर आर 2 और मोर लेवल्स, या उनको हम टायर्स भी कहते हैं, ऑफ गवर्नमेंट. 2 या 2 से ज़्यादा लेवल एज वी डिस्कस अर्लियर, दैट इज यूनिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सेकेंड इज डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन
but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. मीन्स कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ा कि ये हालांकि सिटीजन तो सेम होते हैं, जैसे इंडिया एक ही कंट्री है, अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन लोगों को रूल कर रही है जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो दे गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन हर टायर का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है. जुरिस्डिक्शन मीन्स द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, उस एरिया के ऊपर जिसकी लीगल अथॉरिटी होती है. दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अपना एरिया अलग है जिसकी कि लीगल अथॉरिटी उनके पास है, और स्पेसिफिक मैटर्स चाहे लेजिस्लेशन यानी लॉ से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स भी इनके स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं. थर्ड फीचर इज द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. means कि जो भी jurisdiction मैटर है उनके लेजिस्लेचर टैक्सेशन ऐसा नहीं है कि मन मर्जी के हैं, दीज आर द स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं या टायर ऑफ गवर्नमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं और उसी के हिसाब से वो अपना वर्क करती हैं. फोर्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. और ये पावर या डिवीजन ऑफ वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं, कोई एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि इसमें चेंज कर दूं या स्टेट गवर्नमेंट चाहे इनमें चेंज कर दूं, यूनिलेटरली मीन्स अकेले वो किसी भी तरीके की कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं कर सकती है. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इस तरह का अगर कोई चेंज करना होता है तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत होती है, तभी वो जो उनकी पावर्स हैं या जो भी चेंजेस चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हो सकते हैं. नाउ द फिफ्थ फीचर इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस सिचुएशन कि जो हाईएस्ट कोर्ट है इट एक्ट एज ए एम्पायर. एम्पायर का क्या होता है? फाइनल डिसीजन देने का काम. तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्रेट कर सकता है या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों लेवल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में कोई डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं तो इस तरह की जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी अपनी पावर को यूज़ करती हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे रिलेटेड डिसीजन कोर्ट देता है और कोर्ट का डिसीजन फाइनल ही होता है. सिक्स्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज, भाई सरकार चलती किससे है? टैक्सेस से. तो किस तरीके से टैक्स किस किस चीज़ पर गवर्नमेंट ले सकती है ये स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट. जिस भी चीज़ से टैक्स लेती है गवर्नमेंट वो किन किन चीज़ों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, these are specified in the constitution. Seventh and last feature of federalism is the federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. ये क्वेश्चन वन वर्ड में भी आता है, मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, कि एक तो कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना प्लस अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, कि स्टेट वाइज जो डिफ्रेंसिएशन है उनको भी एक साथ लेकर के चलना. यानी दो पैराडॉक्स हो गए, एक तो यूनिटी भी बना के रखना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी यूनिटी, ये वही वाली बात है, और प्लस रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government and different levels should agree to some rules of power sharing. कि ये जो पावर शेयर हुई है इस पे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो थे ये एग्री हुए थे, एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट एट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. प्लस दोनों ही लेवल या तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनको आपस में ट्रस्ट होना चाहिए. सो एन आइडिया फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. कोई भी डिवीजन ऑफ पावर जब भी वर्क करता है जबकि म्यूचुअल ट्रस्ट होता है आपस में और लोगों के बीच इस चीज़ का एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम साथ रहने चाहते हैं.
This is the seventh feature of federalism. So there are overall 7 features of federalism. So in short, if we discuss about the features of federalism, first is 2 or more level of government. Second is different tiers govern same citizen but has its own jurisdiction. थर्ड इज पावर और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कि जो भी पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली. इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फिफ्थ इज court act as empire if disputes arises between these governments. And sixth is sources of revenue are clearly specified. And seventh point is you are related to the objective of federal government, that is to safeguard and promote unity of the country and to accommodate regional diversity. Now the types of federal government, basically there are 2 types of federal government coming together, जो यानी कि मिल करके साथ आते हैं, एंड होल्डिंग टुगेदर यानी कि एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, and holding together is India, Spain and Belgium. This also comes in your board के example दो any coming together federal government का या holding together federal government का. अगर डिफ्रेंसिएशन देखें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज यानी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलके कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. फॉर सिक्योरिटी पर्पस वो आपस में एक साथ आती हैं जिससे कि वो अपनी पावर को और बढ़ा सके. वाइल होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है, एक लार्ज कंट्री, इंडिया जैसी लार्ज कंट्री या बेल्जियम तो छोटी सी कंट्री थी लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा थे, एथनिक वेरिएशन. तो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट. एक बड़ी कंट्री अपने आप में डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स को इस तरीके से डिवाइड करेगी जिससे कि वर्क एफिशिएंटली हो सके और कंट्री जो है वो पावरफुल हो सके. लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट, या डिवीजन ऑफ पावर जो होता है इसमें अनइक्वल होता है. द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. This balance depends mainly on historical context in which the federation was formed. अब पावर किस तरीके से किस लेवल के पास ज़्यादा होगी किसके पास कम होगी ये डिपेंड करता है उस कंट्री का हिस्ट्री क्या रही है, या मेनली वो कंट्री के जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म. 2 रूट्स होते हैं जिससे कि फेडरेशन बनती है. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type is called coming together federation, includes USA, Switzerland and Australia. In the first category of federation, all the constituent units usually have equal power. जितनी भी units होती हैं उनकी पावर equal होती है. ऐसा नहीं होता है कि कोई एक गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है. एंड द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर. जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि कंट्री खुद डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने का, जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एग्जाम्पल हैं. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं इसे हम. एंड इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है. वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर. के लगभग जो पावर होती हैं वो अनइक्वल होती हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स के अंदर, लेकिन कुछ पावर्स जो होती हैं वो स्पेशली ग्रांटेड होती हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट.